क्लैपिंग मत कीजिए, सुन लीजिए और किताब में पढ़ लीजिए. It is from external occipital protuberance, superior nuchal line, ligamentum nuchae, C7 spine, T1 12 spines. याद हो गया इतना? नहीं याद हुआ? Trapezius coverage, and please tell me. Now we come to the insertion of the trapezius. Okay. Now we come to the insertion of the trapezius. Insertion of the trapezius जो उस वक्त आप लोग हावेला वावेला मचा रहे थे, वहां देखिए. Insertion of trapezius, just see. This is clavicle. Okay. Lateral 1/3 of the clavicle. Okay. ये anterior border है, ये posterior border है. Got the point? This is acromion end. तो acromion end इस तरह से acromion से articulate करता है. समझ में आ गया? Acromion end is articulating with the acromion. समझ में आया नहीं आया? Please tell me. Okay. So अब ऐसे करके देखो. You are visualizing? ये posterior aspect है. यहाँ posterior border of scapula पे हमने तुम्हें बताया था ना, यहाँ insertion होता है trapezius का. याद है नहीं याद है? Posterior border of clavicle पे lateral 1/3 पे. Okay. Now this is acromion. I have told you this is the medial border of the acromion and this is the lateral border of the acromion. Medial border is continuous with the upper lip of crest of spine of scapula. Now just see. यहां पे ऐसे करके ये क्लैविकल आर्टिकुलेट कर रही है, राइट? क्लैविकल इज आर्टिकुलेटिंग. अब यहां पे पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द क्लैविकल पे अटैचमेंट किसका है? ट्रेपीजियस का. सो ट्रेपीजियस इज इंसर्टेड ऑन पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 of the clavicle, which I have told you, medial border of acromion and upper lip of crest of spine of scapula. Okay. Trapezius is inserted on medial border of acromion. No, trapezius is inserted on the posterior border of the lateral 1/3 of the clavicle, medial border of acromion and upper lip of crest of spine of scapula. समझ में आ गया? So, अब यहाँ पे क्लेविकल क्योंकि थोड़ा एंटीरियर भी होता है, देखो ये जा रहा है. This is inserted, ये upper fibers हैं. Upper fibers are insert of the trapezius are inserted on posterior border of lateral 1/3 of the clavicle. Middle fibers, they are inserted on medial border of acromion and upper lip of crest of spine of scapula. लोअर लिप, लोअर फाइबर्स होती हैं, यहाँ पे इंसर्टेड होती है. देखो जो यहाँ पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला खत्म होता है, रूट बिल्कुल होती है, वहां पे होती है, जस्ट ऑन द बिगिनिंग ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला. ओके. सो द ट्रेपीजियस इज इंसर्टेड ऑन, यहाँ देखिए और क्लियरली देख लीजिए, ये ट्रेपीजियस का पूरा इंसर्शन है. ट्रेपीजियस इज इंसर्टेड ऑन, ये क्लैविकल है, क्लैविकल है. दिस इज द लैटरल 1/3 ऑफ द क्लैविकल, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर. Posterior border of lateral 1/3 of the clavicle, medial border of acromion and upper lip of crest of spine of scapula. थोड़ा सा spine of scapula का इधर का भी पार्ट होता है जहां लोअर फाइबर्स जो आती हैं. ये अपर फाइबर्स हैं जो क्लैविकल पे जाएंगी, ये मिडिल फाइबर्स हैं जो acromion और crest of spine of scapula पे जाएंगी, ये लोअर फाइबर्स. ओके. 50% समझ में आ गया या नहीं आया है? प्लीज टेल मी. देखो ये होता है. देखो ये क्लैविकल इट इज आर्टिकुलेटिंग विद द एक्रोमियन.
तो ये देखो ये हुआ एंटीरियर 1/3 पे तो डेल्टोइड जाएगी, एंटीरियर बॉर्डर पे तो डेल्टोइड जाएगी, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपीजियस जाएगी। तो ये हुई ट्रेपीजियस। फिर ये आ गई, ये एक्रोमियन है, ये इसका लैटरल बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है। यहां से आ गई मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन पे। फिर आ गई ये अपर मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन से होती हुई अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और बिल्कुल जो नीचे की फाइबर्स हैं वो ऐसे होके यहाँ इस एरिया पे आ जाती है। आ गया इंसर्शन? समझ में नहीं आया? थोड़ा टफ है, मुश्किल लगती है समझने में। ओके, अब अपनी किताब खोल लो। नाउ किताब की, नाउ यू विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर बुक। ओके, origin of trapezius is from the external occipital protuberance, adjacent medial part of the superior nuchal line, ligamentum nuchae, C7 spine, spines of T1 to T12. Then upper fibers, देखो ये होता है attachment. Then insertion of the fibers are from the posterior border of the lateral 1/3 of the clavicle, medial border of the acromion, and upper lip of the crest of the spine of scapula. Got it? Got it or not? काफी टफ है, मुश्किल से समझ में आता है। Shall I repeat it again और आप लोगों को समझ में आ गया? Please tell me. Ma'am, please repeat. Insertion only. इंसर्शन, ओके। देखो इंसर्शन जो है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। डायमंड शेप फाइबर्स ऐसे से करके आ रही है, राइट? फाइबर्स आर इंसर्टेड ऑन पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लैटरल 1/3 ऑफ द क्लैविकल। ओके, इतना समझ में आ गया? गॉट इट? क्लैविकल पे समझ में आ गया? कहां आ गया? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लैटरल 1/3 ऑफ द क्लैविकल। ओके, देन मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन। इतना समझ में आ गया? प्लीज टेल मी, इतना समझ में आ गया? देन अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। इतना समझ में आ गया? ओके, सो ओरिजिन इंसर्शन दोनों एक बार फिर से सुन लो ट्रेपीजियस के। Origin is from the superior external occipital protuberance, superior nuchal line, C7 spine, ligamentum nuchae, C7, T1 to T12. Insertion is on the posterior border of the lateral 1/3 of the clavicle, and lateral border of the acromion and upper lip of the crest of spine of scapula. इतना समझ में आ गया ओरिजिन इंसर्शन? अब आगे बढ़ने से पहले जरा इसके एक्शंस देख लो। जस्ट लुक एट दिस मसल। अब देखो ये अपर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट जब चीज होती है तो इस एरिया की शॉर्टनिंग होगी। कॉन्ट्रैक्शन मींस शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स। ओके, तो जब ये शॉर्टनिंग होगी तो स्कैपुला विल बी एलिवेटेड। आ रहा है समझ में? स्कैपुला विल बी एलिवेटेड, सो इट विल कॉज द एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। क्या कॉज करेंगे ये? एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। अब ये मिडिल फाइबर्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो ये देखो जब इधर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये पीछे की तरफ पुश करेंगी, क्योंकि ये बैक की स्पाइन पे अटैच है और ये यहाँ पे अटैच है। सो इट दे विल कॉज द रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला। जैसे मैंने सेरेटस एंटीरियर का पंचिंग और पुशिंग बताया था, तो उसमें स्कैपुला का फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, प्रोट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला होता है। यहाँ दे विल कॉज द रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इसे पीछे को खींचेंगी। दे आर नोन एज द रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला। और अपर और लोअर जब ये दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ओवरहेड अबडक्शन जो ये वाला होता है उसमें मदद करती है। यानी कुछ लोग कहते हैं जब एंटायर ट्रेपीजियस कॉन्ट्रैक्ट करती है, इट हेल्प्स इन द ओवरहेड अबडक्शन। आ रहा है समझ में? श्रगिंग ऑफ शोल्डर देखो ऐसे होता है जो मैं कर रही हूँ, श्रगिंग ऑफ शोल्डर, इसमें एलिवेशन होता है। ओके, गॉट द पॉइंट? अपर फाइबर्स दे कॉज द एलिवेशन ऑफ द शोल्डर, मिडिल फाइबर्स दे कॉज द रिट्रैक्शन, बैकवर्ड मूवमेंट, और पूरा इन टोटलिटी ओवरहेड अबडक्शन में हेल्प करती है, स्टडी करती है स्कैपुला को। इसकी नर्व सप्लाई ब्रेकियल प्लेक्सस से नहीं होती,
इट्स नर्व सप्लाई, एक तो प्रोप्रियोसेप्टिव ये होता है कि किसी को हम नोच रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, तो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस तो इसके जाते हैं शायद C3 C4 से, किन्हीं किताबों में C4 C5 लिखते हैं, बट क्रेनियल नर्व्स पढ़ी है तुमने, ऑप्टिक, ओल्फैक्टरी, ओक्यूलोमोटर, राइट? तो 11th क्रेनियल नर्व होती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, तो स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व इट सप्लाइज द ट्रेपेजियस। ओके, ये देखिए, ये लिखा ही हुआ है, आप पढ़ ही लीजिए, हमें बोलने की क्या जरूरत है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेपेजियस। Shall I move to other muscle या फिर आप अभी इसी को दोबारा एक बार रिवाइज करवाएंगे? प्लीज टेल मी। मैम रिवाइज कर दीजिए। Okay. Origin of trapezius is from the external occipital protuberance, ligamentum line, ligamentum nuci, superior nucial line, ligamentum nuci, C1 and C7, and spines of T1 to T12 and supraspinous ligaments, and its insertion is on the posterior border of the lateral 1/3 of the clavicle, and lateral border of the acromion and upper lip of the crest of spine of scapula. Its nerve supplies through spinal part of the accessory nerve. Spinal part of the accessory nerve लिखा होगा आपकी बुक में. Upper fibers elevate the scapula and the middle fibers retract the scapula, and lower fibers scapula को inferior को pull करते हैं, जिसकी वजह से जब scapula नीचे को जाता है तो overhead abduction होता है, right? Now we come to the deltoid. Okay. Deltoid is a multi-pennate muscle. What do you mean by multi-pennate? Am I audible? Am I audible or not? या फिर चला गया connection? Okay. You are audible. वक्त ने बता दिया। तुम लोगों ने जनरल एनाटॉमी की क्लास में मसल नहीं पढ़ा क्या? Okay, I am audible, but tell me what is multi-pennate? Multi-directional. Ma'am, having so many like feathers. Origins. No, fibers तो सब में बहुत ज्यादा नहीं. Multi-directional. Origin is from. Feathers. Okay, yes, feathers. Okay. So origin is from different directions, and all those fibers converge at a single point. That is its insertion. अब जो trapezius का insertion है, उसका opposite clavicle का origin. Okay. So. Got this? Got this? Okay. यहाँ से got this? यहाँ shoulder आएगा, glenoid cavity होती है, right? समझ में आ रहा है? ठीक. तो deltoid का origin anterior fibers आएंगी, lateral और middle fibers इधर से आएंगी, posterior fibers इधर से आएंगी. So it is a multi-pennate muscle. Fibers originate anteriorly, anterior fibers, middle fibers, posterior fibers. इतनी बात समझ में आ गई? Just tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So deltoid का insertion होता था posterior border of the lateral 1/3 of the clavicle. Trapezius का insertion होता था lateral 1/3 of the, मतलब posterior border of the lateral 1/3 of the clavicle. Deltoid का origin होगा, anterior fibers originate from anterior border of the lateral 1/3 of the clavicle. Okay? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. अच्छा. अब देखो lateral end जो है वो acromion से articulate कर रहा है. अब ये जो है, just see this. Lateral fibers और middle fibers originate from the lateral border of the acromion. कहाँ से आएंगी?
from the lateral border of the acromion. And posterior fibers, they originate from the lower lip of crest of spine of scapula. Posterior fibers originate from the lower lip of crest of spine of scapula. Got the point? So the origin of deltoid is just opposite to the insertion of trapezius. समझ में आ रहा है? Yes, Am I ma'am. audible? हाँ, okay. So insertion of trapezius कहाँ था? Posterior border of the lateral 1/3 of clavicle. Okay. तो origin of deltoid होगा anterior border of the lateral 1/3 of the clavicle. सही. Insertion of trapezius था medial border of acromion. तो origin of deltoid हो गया lateral border of acromion. Insertion of trapezius था upper lip of crest of spine of scapula. तो origin of deltoid हो गया lower lip of crest of spine of scapula. आ गई बातें समझ में नहीं आई? Yes, ma'am. अभी डायग्राम देखोगे तो और अच्छे से आ जाएगी. ओके. अब यहां पे अभी इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन इससे आप समझ सकते हो क्लेविकल से. क्लेविकल का तो समझ में आ रहा है ना? Anterior border of the lateral 1/3 of the clavicle. This is medial 2/3 of the clavicle. This is anterior. Okay. यहाँ पे